Welcome to my channel Social Studies CBSE Online. This is a part 2 of Fundamental Rights and Fundamental Duties chapter from Civics part, class 8th. In our previous part, which I have uploaded earlier, we have seen about fundamental rights. In this part, we are going to see about fundamental duties. Although the Indian Constitution grants fundamental rights to its citizens, the citizens in turn are expected to do certain things which are collectively known as fundamental duties. The fundamental duties has been incorporated in Indian Constitution through the 42nd Amendment in 1976. So there are majorly 10 fundamental rights. Now the 11th one was added in 2002 according to the 86th Amendment, which was made in the Indian Constitution. So let me clear one point about amendment which I have already taught you during the first chapter of Civics Constitution, a revelation. The first fundamental duty which comes across is the citizens are supposed to be abided by the Constitution and should respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. So the first fundamental duty is हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइडेड होना चाहिए, हमें उससे जुड़े रहना चाहिए एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स है, जैसे कि आपने प्रियम्बल में पढ़ा है, सोवरेन, जस्टिस, लिबर्टी, fraternity, equality, democracy, secularism, all these things are the ideals of the constitution and the constitutional institutions such as the courts, the parliament. We have to respect all these things. The next thing comes, we should respect our national flag and the national anthem. The second fundamental duty is we should cherish and follow the noble ideals that inspired our national struggle for independence. जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो आइडियल्स जो महान आत्माओं ने दिए थे हमें, जैसे शहीद भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इनके प्रिंसिपल्स है, इनके आइडियल्स है, इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो फिलॉसफी है, इसके ऊपर हमें उसको चेरिश करना है और उसको फॉलो करना है. चेरिश का मतलब होता है वी शुड अप्रिशिएट इट एंड फॉलो भी करना है कि ताकि हमारी लाइफ और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उस हिसाब से गुजरे. The third fundamental right is uphold and protect the unity, sovereignty and integrity of the nation. We are the responsible person, we are the responsible citizen of the country. It is in our hands to uphold. हम हमारे देश की जो यूनिटी है उसको अपहोल्ड करेंगे, उसे ऊंचा रखेंगे, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे. हमारी जो आज़ादी है, सोवेनिटी, सोवेरेन का मैंने आपको मीनिंग बताया था, द कंट्री विच इज़ फ्री फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड, दैट इज़ इंडिपेंडेंट. एंड इंटीग्रिटी, जो हमारे देश का मान सम्मान है, इसको हम ऊंचा रखेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे. Third one is defend the country and render national services if and when required. Defending does not mean that going on the border and protecting the country. Definitely, if the nation requires, अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है, दो वी आर नॉट इन द आर्मी, हमें बॉर्डर पे जाके दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा फॉर सेक ऑफ आवर नेशन. लेकिन यहाँ पे डिफेंडिंग का मतलब होता है एज वेल एज ऑन द बॉर्डर बट ऑल्सो इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. जहाँ पे भी आप मौजूद हो, भले ही आप डॉक्टर्स हो, आप कहीं पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप अपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट देंगे. आप अगर स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आप अपने बेस्ट बेस्ट वहाँ पे देंगे और मेडल्स हमारे देश के लिए लॉरल्स लेके आएंगे. द fourth point in the fundamental duties is promoting harmony and spirit of brotherhood among all the citizens, irrespective of religious, linguistic, regional, and sectional diversities. Give up practices derogatory to the dignity of the woman. यहाँ पे हमें हमारे देश की हारमोनी मतलब जो पीस है, एकता है, एकाग्रता है, उसको कायम रखना चाहिए. हमें जो हमारा भाईचारा है, एज सेड इनटू द प्लेज दैट इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स irrespective of our religion, whether we belong to any of the religion, irrespective of that, whether we speak any of the language which is there in the nation, regional, whether we live in Maharashtra or any other place, whether we live in or other sectional diversities, whether we are tribals or whether we are living in any of the sections of the society, भले ही हम कहीं पर भी पैदा हुए हो हिंदुस्तान में, हम सब भारतीय है और हम सब भाई है, हम सब बंधु है. ये हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहिए. और डेरोगेटरी हमें वो प्रैक्टिसेस छोड़ देनी चाहिए जो वुमेन्स की डिग्निटी को ठेस पहुंचाती है.
जहाँ पे वुमेन्स पे अत्याचार होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो हमें वो प्रैक्टिसेस नहीं देख फॉलो करनी चाहिए, उसका हमें विरोध करना चाहिए। वैल्यू एंड प्रिजर्व द नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो सभ्यता है उसको हम वैल्यू देंगे, उसको हम प्रेफरेंस देंगे, एज वेल एज हम उसको प्रिजर्व करेंगे, हमारे जो कल्चर है हम उसको प्रमोट करेंगे जनरेशन टू जनरेशन तक। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हैव एम्पैथी फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हम जंगली जानवरों की तरफ एम्पैथी रखेंगे, शिकार करना, उनको छेड़ना, उनको सताना, ऐसी चीज़ें हम ना करेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, ट्रीज को कट करना या हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाके वहाँ पे गंदगी फैलाना, बीचेस पे जाके वहाँ पे गंदगी फैलाना, ये सब आजकल आम होता है। दिस इज कॉमनली सीन इन द territories of India. This should not happen. We are supposed to preserve all these natural environment of our nation. Develop a scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform. हमें एक साइंटिफिक टेम्पर बनाना चाहिए, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अंधश्रद्धा मान रहे हो, अंधश्रद्धा के अंदर जी रहे हो, जिसको हम बोलते हैं भाई ठीक है स्पिरिचुअल थिंग्स है, ओके वो हम किसी चीज़ पे ऐसे बिलीव करते हुए जैसे कि उस पर हमने कोई रिसर्च ही नहीं की है। ठीक है, अंधश्रद्धा को हमें छोड़ना है, साइंटिफिक टेम्पर हमें मौजूद हमें डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म हमें डेवलप करना है। वी आर बॉर्न एज ह्यूमंस, सो वी शुड रिस्पेक्ट ह्यूमंस एंड देयर वैल्यूज टू। Safeguard public property and reject violence. We are supposed to safeguard the public property. The property which is owned by the government is our prime duty to we are responsible, and as well as it is our prime duty to safeguard the public property. And violence should be rejected. जो जो झगड़े होते हैं, टंटे होते हैं, इसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए. Strive towards excellence in all areas of individuals and collective activity, so that India, as a nation, scales to higher levels of endeavor and achievements. तो हमें हमको हर कोई फील्ड में हो, हम चाहे जो फील्ड में हो, भले ही हम पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स प्लेयर हो, फुटबॉलर हो, एक्टर हो, हमें वो उस फील्ड के अंदर एक्सेल एक्सेल करना है। यू हैव सीन मेनी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, you have seen many of the actors, those who have gained stardom, the whole world knows them. Examples are there in front of you: Mr. Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, MS Dhoni, Sachin Tendulkar, Mr. Kapil Dev, Lata Mangeshkar. So who are these people? They have excel in their field. उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल किया है, कुछ अनोखा किया है जिसको दुनिया याद रखती है। तो इससे हमारे देश का मान सम्मान इज्जत जो है वो बढ़ेगी। The last fundamental duty was added in 2002, as I have said, through the 86th amendment. अमेंडमेंट का भी मीनिंग मैंने आपको बताया है। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है। फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स के लिए, फंडामेंटल राइट है चिल्ड्रन के लिए। तो हियर द चिल्ड्रन बिलो 6 to from 6 to 14 years are supposed to be given free and compulsory education from their parents and guardians. तो गार्डियंस जो होते हैं, जो बच्चों की देखरेख करते हैं, या फिर पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता, उनका कर्तव्य बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को ज्ञान दे, नॉलेज दे, एजुकेशन दे। और बच्चों का अधिकार है, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रन दैट दे शुड गेट द education at the age of 16 to 14 years. The next is right for all. Though we have completed 7 decades of our independence, but still there are certain things where we need to improve. Many socio-cultural issues are still there in the India, so we are supposed to tackle that. And governments, whatsoever government comes every 5 years, they strive their best to tackle these situations. So although all citizens enjoy fundamental rights, special provisions have been given to children, women and backward classes. Let us see some of them. So these are the things which we are supposed to learn now about child labor, women's respect for women's, and uh, the rights for Dalits and tribals. These are the things. These are the sections of the society, those who were not looked after during the medieval period, and they suffered a lot because of the negligence of the society. Child labor. Children, as we know, requires and deserves special attention. The Child Labor Prohibition and Regulation Act was passed in the year 1986 to protect the homeless and poor children being exploited by others in factories, hotels and dhabas. यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का जो मीनिंग होता है, वो एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग है कि उन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है
जहाँ पे एक आदमी की जो कीमत होती है, दिन भर की दिहाड़ी जो मजूरी होती है वो उसकी 300-400 रुपये होती है, लेकिन बच्चों को 100 रुपये में वहाँ पे दिन भर काम कराया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे प्रकार है। जैसे कि आप राशन की दुकान पे जाते हो, राशन की दुकान पे जाने के बाद में जो बनिया है वो आपको 5 किलो की अवेज में अगर 3 किलो या 3.5 किलो अनाज अगर देता है, तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन है। सो एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे सूरत है, बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारे टर्म्स है। वुमेन्स एंड मेंस, मैन और वुमेन के बीच में भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द जॉब्स, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन्स। जैसे कि कोई अगर मेल है वो 8 घंटे काम करता है तो उसको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है फॉर एग्जाम्पल, और उसी ऑन द अदर हैंड एक वुमेन है, एक लेडी है, एक महिला है, वो अगर काम करती है तो उसे 10,000 रुपये महीना पगार मिलती है। सो ये भी एक्सप्लॉयटेशन है उस महिला का, उस महिला के जो फंडामेंटल राइट है, जैसे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो पास हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका भी उल्लंघन यहाँ पे होता है। सो ये नहीं होना चाहिए। सो लेट्स मूव कम बैक टू द चाइल्ड लेबर एक्ट। सो दिस इज कैलाश सत्यार्थी। चाइल्ड लेबर जो इंडिया के अंदर मेडिवल एज में था, दिस इज द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। ही फाउंडेड एन एनजीओ, उसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, एंड इट वाज फाउंडेड टू रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम बॉन्डेड लेबर एंड स्लेवरी। He made several efforts to made or raise awareness amongst child labor throughout the world. ठीक है, it is mainly due to Satyarthi's hard work that Child Labor and Prohibition and Regulation Act was passed in the Indian Constitution in 1986. It may come in your MCQs, when was Child Labor and Prohibition and Regulation Act was passed. So it was passed in 1986. So let us see something about Kailash Satyarthi. The pictures here shows that child labor. आप देख रहे हो कि जो बच्चों की उम्र जो एजुकेशन और तालीम हासिल करने की है, उस उम्र में वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दिस इज वायलेशन ऑफ देयर rights. Kailash Satyarthi was born on 11th of January 1954. He was awarded Nobel Peace Prize in the year 2014. He founded an NGO of Bachpan Bachao Andolan to rescue children from bonded labor and slavery. He made all possible efforts to raise awareness about child labor worldwide. It was due to his efforts the Government of India passed Child Labor Prohibition and Regulation Act in 1986 to protect poor and homeless children from being exploited by others. The act prohibited employment of children less than 14 years of age in factories, hotels, and domestic labor. So, if you find some of the child laborers, those who are working, आप अगर कहीं पे देखते हो तो चाइल्ड लेबर हेल्पलाइन नंबर भी है। इफ़ यू सर्फ ऑन गूगल, आपको वो चाइल्ड लेबर हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। इट इज़ 1028 समथिंग 1029। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ चेक इट, बट स्टिल चाइल्ड लेबर हेल्पलाइन नंबर है। तो यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस चाइल्ड लेबर हेल्पलाइन नंबर एंड आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हो। द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। हमने देखा है कि मेडिवल इंडिया एंड एंशियंट इंडिया के अंदर वुमेन्स को स्पेशल प्रिविलेजेस थे। वुमेन्स जो थे वो फैमिली में बैठ करके अपने राइट्स एंजॉय करते थे, वो अपनी फैमिली में बैठ करके डिस्कशंस में हिस्सा लेते थे। बट मेडिवल इंडिया के अंदर वुमेन्स को सेपरेट कर दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू कम इनटू द फैमिली गैदरिंग्स। वो घर उनके लिए चूल्हा चौकी और घर की चार दीवारें उनकी दुनिया थी। दे वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, जिसके अंदर बहुत सारे वुमेन रिफॉर्मर्स आए एजुकेशन और लिबर्टी के लिए। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती की प्रैक्टिसेस बैन करवाई, विडोरी मैरिज की जो प्रैक्टिसेस है उन्होंने वो स्टार्ट करवाई कि पहले महिलाओं की शादी अगर एक बार हो जाती थी तो उन्हें दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलता था। वुमेन्स के जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस वुमेन्स के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पहल की है, बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो इन कदमों में से एक कदम ये है कि 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स इन द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, दैट इज ग्राम पंचायत एंड विलेज पंचायत। डिस्क्रिमिनेशन अगेन दलित एंड ट्राइबल्स। दलित जो होते हैं इनको अनटचेबल माना जाता था मेडिवल इंडिया के पीरियड में, मेडिवल इंडिया के टाइम पे, जब जो इंडिया का जो सोसाइटी जो थी वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर जो फर्स्ट क्लास सोसाइटी थे वो थी ब्राह्मण्स की, सेकंड क्षत्रिय थे, फोर्थ वैश्य थे, और फिफ्थ जो है वो शूद्र थे, जिनको स्लेव्स बोला जाता था। तो ये जो स्लेव्स है इनको गांव के बाहर रखा जाता था
और गांव के बाहर रहने की वजह से इनको अनटचेबल माना जाता था। जो भी स्कैवेंजर वर्क है, जैसे कि कोई जानवर अगर मर जाता था तो ये जो लोग हैं इनको बुलाया जाता था और ये उनको कहा जाता कि ये जानवरों को आप लेकर के जाओ यहाँ से, और उसी को वो कुछ करते थे, उनकी लाइवलीहुड उसी पे चलती थी। ये भीख मांगते थे और स्लेव, एज अ स्लेव ये लोगों के पास में काम करते थे। जो ऊपर के तीन क्लासेस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनके घरों पर ये लोग काम करते थे या खेतों में ये लोग काम करते थे। इनको दूर से ही ट्रीट किया जाता था। इनको पानी लेने के लिए नहीं लाया अलाउड नहीं था। जो गांव का कुआं होता था वहां से इनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। यहाँ तक कि इनके पीछे एक झाड़ू बांध दी जाती थी जिसके वजह से इनके जो फुटप्रिंट्स है, कदम है, वो मिट जाए। यहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन किया गया अनटचेबल्स के साथ में, जो शूद्र थे उनके साथ में, जो कि बिल्कुल गलत था। दैट वाज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए। इंडियन रेनेसां जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये स्वामी विवेकानंदा, ये सारे रिफॉर्मर्स जो थे, इन्होंने दलित्स और जो ट्राइबल्स थे उनके अधिकारों के लिए समाज से लड़ा और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। सो ट्राइबल्स को भी बहुत सारी तकलीफ होती थी जब कंस्ट्रक्शन होता था। ट्राइबल्स ऑलवेज, यू माइट सी दैट दिस पीपल आर ऑलवेज बीइंग रिसाइडिंग इन द एरियाज ऑफ जंगल्स। तो जब कंस्ट्रक्शन किए जाते थे डैम्स के, कैनाल्स के, रोड्स के, हाईवेज के, तो इन ट्राइबल्स को उससे इफेक्ट होता था। उनका जो एनवायरनमेंट था, नेचुरल हैबिटेट था, वो उनसे भी छीन लिया जाता था और दे हैव टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, देयर वाज अ डिस्प्लेसमेंट फॉर द ट्राइबल्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो इफेक्ट करती थी। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के लॉज बने, बहुत सारे अमेंडमेंट्स बने टू फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो समाज की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, दलित और ट्राइबल, इनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने भी कोशिश की है। बहुत सारे आंदोलन चले हैं, जिसमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन एक है एंड ह्यूमन राइट्स कैंपेन। ये दो आंदोलन जो सबसे ज़्यादा चले हैं दलित और ट्राइबल्स के लिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं। Just last point of the chapter is human rights. Yes, definitely every human has a right. It's a universal right. ये पूरी दुनिया के अंदर लागू किए गए हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड और यूएसए, इन्होंने एडवोकेट किया राइट्स के ऊपर। सो जो यूएन की जनरल असेंबली हुई थी 1948 में, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया कि हर इंसान के लिए ह्यूमन राइट्स है। Rights of an individual or a group that is necessary for existence is just an equal society is known as human right. ये human right की definition है। तो हर इंसान के अपने rights है पूरी दुनिया के अंदर। अब हर इंसान जो पैदा होता है वो अपने rights लेके पैदा होता है, और यूनिवर्सल ये राइट्स है कि उन पे अत्याचार ना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, और बहुत सारे उसके अंदर लॉज क्लॉजेज है। तो अत्याचार ना हो, उसको लेकर ह्यूमन राइट्स जो है वो हमेशा आगे रहा है और लड़ता रहा है लोगों के अधिकारों के लिए। सो ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एज दे पर्टिनेंट फॉर ऑल ह्यूमंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आज जो ह्यूमंस हैं और आने वाली जो ह्यूमंस की नस्ल है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स उनके लिए मौजूद है। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। Thank you for listening to me patiently, my dear children. Please like, share, subscribe my channel, and if you like my videos, please like it. कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो आपको, डाउट्स अगर कुछ होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। यू आर फ्री टू कमेंट ओवर माई वीडियोज़, देर इज़ नो। और कुछ अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, टिल देन थैंक यू. Stay tuned for my next chapter. I will upload it soon. Thank you very much.